Hello student, as you know, we are studying various modes of asexual reproduction. In the previous video, we studied about vegetative propagation, and now one more thing which we will add in this asexual reproduction is micropropagation. What is this micropropagation? It is propagation of plants by tissue culture method. Tissue culture method. So micropropagation, it is generally included in asexual reproduction because here for propagation of plant we will use vegetative plant parts. But we can also propagate reproductive organs by this method, but mainly we will talk it as a asexual means of reproduction. So what is the definition telling? Propagation of plants by tissue culture method. Now what is this tissue culture method? Propagation, you all know, it is reproduction or making copies of the plant itself. So what is tissue culture? In this tissue culture method, what is done? We can take any plant tissue. It can be a piece of leaf, it can be a root, it can be a stem, anything we can take. There can be certain tissue, for example, meristematic tissue, some other, for example, collenchymatous tissue. So यहाँ पर हम बेसिकली करते क्या हैं, बहुत थोड़े से मटेरियल से, बहुत छोटे से प्लांट पीस से, छोटी सी लीफ के पीस से, छोटा सा रूट का पीस लेकर के हम बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं. उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर मेथड. बाय कल्चरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू वी विल प्रोपगेट द प्लांट. It can be all those plant parts which are used for tissue culturing are known as explant. So what is done in this method? What we do in this tissue culture method, we take a nutrient medium like this. We take a nutrient medium. This is your nutrient medium. On it we will place the tissue or explant. For example, we have took piece of leaf as explant. Now what happens? This tissue, this bit of tissue, this explant gets nourishment from this nutrient medium, and this explant, its cells start to divide, and here an unorganized mass of cells is formed. Due to this nutrient medium, the cells start dividing and an unorganized mass of cells is obtained. This mass of cells is known as callus. And further, from this callus, now what happens? Each cell from the callus will develop into a small embryo. For example, like this.
The cells develop into little embryos. These little embryos are known as embryoids. Embryoids. Now, further, these embryoids further take form of small plants. This is this nutrient medium. Now, this embryoids, these are now small plants known as plantlets. For this plantlet formation, some changes are made in this nutrient medium and then plantlets are formed. These plantlets are now transferred to the nursery beds where these are their further growth is carried out. So you see, in this tissue culture method, otherwise एक छोटा सा पत्ती का टुकड़ा किसी भी प्लांट की, हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीव से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, लेकिन हर तरह के पेड़ में, हर तरह के प्लांट में लीव से प्रोपिगेशन नहीं हो पाता. लेकिन इस टिश्यू कल्चर मेथड में हमने क्या देखा, वी टुक पीस ऑफ लीव, छोटा सा हमने एक पीस लिया, अदरवाइज वी वुड हैव डिस्कार्डेड इट. लेकिन इन टिश्यू कल्चर मेथड हमने ये पीस लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको रखा, तो इस लीफ से भी हमने कितने सारे प्लांटलेट्स जो है वो रीजनरेट कर लिए. सो इट इज अ मेथड ऑफ फ्यूचर फॉर प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स. तो यहाँ पर जो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं वो बहुत छोटा है. वी आर यूजिंग अ पीस ऑफ द टिश्यू. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइक्रो प्रोपिगेशन बाय टिश्यू कल्चर method. We have cultured the tissue in nutrient medium and obtained the plant. This is the micro propagation. Now, micro propagation की जरूरत क्या है? What is the use of micro propagation? So it is useful in producing virus-free plants. Its use is in production of virus-free plants, in production of disease-free plants, and if we want any plant to multiply quickly, quick multiplication, मान लीजिए कोई प्लांट ऐसा है जिसका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बहुत लंबे टाइम के बाद उसमें सीड्स प्रोड्यूस होंगे, फिर हम उन सीड्स को सो करेंगे, तब हमको उनकी नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी. तो मान लीजिए हमें उन प्लांट्स को हम चाहते हैं कि वो क्विकली मल्टीप्लाई करें, हमें उनकी नेक्स्ट जनरेशन जल्दी से जल्दी मिले. इसके लिए हम यूज करेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, क्योंकि हमें वहां क्या करना है, छोटा सा टिश्यू लेना है और उसको मल्टीप्लाई कराना है बाय टिश्यू कल्चर मेथड. नेक्स्ट, इसका जो यूज किया जाता है, इट इज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव ornamental flowers like orchids. Orchids are flowers of very rare occurrence और ये हमेशा बहुत ज्यादा inaccessible जगहों पर ये पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा रेयर इनकी अकरेंस होती है. तो इसलिए ऐसे फ्लावर्स के लिए भी हम माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्निक यूज करते हैं. नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है इन प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉइड्स. फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मान लो हमने कोई पी प्लांट है, हमने उस पी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में हम फर्दर आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताऊं इसमें। तो मान लीजिए हमने कोई पी प्लांट है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है फॉर टॉल कैरेक्टर, कि हमें प्लांट कैसा चाहिए, लंबा चाहिए। वैसा जो प्लांट होगा, दिस इज क्रोमोसोम, दैट टॉलनेस, यू नो, एवरी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर प्लांट्स में होता है, इट डिपेंड्स अपॉन जीन्स। सो ईच जीन हैज two alternate forms. Each gene has two alternate forms, and these alternate forms are known as alleles. तो ऐसा जीन जिसकी दोनों अल्टरनेट फॉर्म सेम है, उसे कहते हैं होमो जाइगस। और अगर आपके पास कोई ऐसा जीन है, आई विल रब दिस, कोई ऐसा जीन है जिसमें कि एक एलील कैपिटल टी है और दूसरी स्मॉल टी है, तो ऐसे जीन को हम बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। अगेन इफ देयर इज स्मॉल टी, उसको हम फिर कहेंगे होमोजाइगस। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, इसकी ये जो लोकेशन है, इस पर ये टॉलनेस का, ये जो टी है, इट इज रिप्रेजेंटिंग टॉलनेस, इस तरह से। सो दिस पर्टिकुलर सेल या प्लांट कहें हम, इट इज होमोजाइगस फॉर टॉलनेस। ये लंबाई के लिए कैसा है, होमोजाइगस है, क्योंकि इसकी दोनों एलीज जो है वो टॉलनेस के लिए वो सेम है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट आए, वो भी इसके बराबर, पेरेंट प्लांट के बराबर ही इक्वली टॉल हो। तो अगर हमने उसको नेचर में ग्रो करने दिया तो क्या होगा, देयर आर चांसेस कि हमें फिर फर्दर जनरेशन में फिर से टॉल प्लांट ना मिले। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, इस कैरेक्टर को रिटेन करना चाहते हैं। तो अगर हम इस कैरेक्टर को रिटेन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये सिर्फ टॉलनेस का एग्जाम्पल है। हमने काफी सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस किए हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस किए हैं, जिनकी फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन में वो फ्रूट क्वालिटी जो है वो कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द टेक्निक माइक्रो प्रोपेगेशन। तो दैट वाज द यूज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। अब हम माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड। This technique is in detail in your further chapters. There we will again discuss this in detail. अब हम बात करेंगे क्यों प्लांट्स वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं नेचर में विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। सो these plants, these have lost the capacity to produce seeds. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अब सीड्स प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो वैसे प्लांट के केस में हमें क्या होगा, we will take help of vegetative propagation only.
नाउ सेकेंड थिंग, और क्या हो सकता है, मान लीजिए जो प्लांट्स, एक प्लांट ऐसा है जो सीड प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स which have poor seed viability। अब मान लीजिए प्लांट जो है वो सीड्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उनकी जो वायबिलिटी है इट इज वेरी पुअर। एंड नाउ व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट। अब दोनों ही केसेस में क्या होगा, वी नीड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि यहां बीज ही नहीं बन रहा है, यहां पर बन रहा है तो उसका फायदा नहीं है क्योंकि वो वायबल नहीं है, मीन्स इट इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। नाउ तीसरी चीज क्या हो सकती है, देयर आर सर्टेन प्लांट्स in which seeds are being formed, but the seeds have prolonged seed dormancy, prolonged seed dormancy। अब सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, कई बार क्या होता है, सर्टेन सीड्स आर देयर, अगर आप उनको बिल्कुल सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे भी रहे हैं उसके बाद भी दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट। तो व्हाट इज डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी? इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द सीड टू germinate even if the environmental conditions are suitable। क्या है सीड डॉर्मेंसी? अब हमारा जो सीड है वो वायबल भी है, इट इज एबल टू जर्मिनेट, बट इट इज नॉट जर्मिनेटिंग। इसको हम एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल मीन्स मॉइस्चर है, ऑक्सीजन का सही कंटेंट है, सॉइल में है सीड, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसको कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे सीड प्रोड्यूस करते हैं जिनकी सीड डॉर्मेंसी, ये जो इनेबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा लंबी ड्यूरेशन की होती है। तो अब हम चाहते हैं उन प्लांट्स की प्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो, तो वी कैन नॉट वेट फॉर दैट डॉर्मेंसी टू ब्रेक। हम नहीं मान लीजिए इंतजार कर सकते हैं कि डॉर्मेंसी कब खत्म होगी, ये खत्म होती है लेकिन काफी टाइम लगाने के बाद। तो अब हमें प्रोडक्शन चाहिए जल्दी, डॉर्मेंसी ब्रेक हो रही है लेट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दैट्स व्हाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अब ये सीड डॉर्मेंसी होती किस वजह से है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सीड है हमारे पास, उसका जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, हो सकता है उस सीड कोट में एब्सिसिक एसिड की जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो, या फिर फिनोल्स का कंटेंट बहुत ज्यादा हो, तब भी सीड जो है ऑप्टिमम कंडीशंस मिलने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं कर पाता है। हो सकता है जो सीड कोट हो वो बहुत ज्यादा म्यूसिलेजिनस हो, म्यूसिलेजिनस मीन्स उसके बाहर बहुत थिक जेली की तरह कोट है, उस वजह से क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज सीड डॉर्मेंसी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पर हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
Next use of this vegetative, importance of this vegetative propagation is, for example, if we want to retain the original plant, फिर से वही बात सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट है जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने बहुत सिलेक्ट करके चूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लांट जिसके फ्रूट्स जो है वो साइज में बड़े हैं, वो बहुत ज्यादा जूसी है, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। तो हम क्या चाहेंगे, उसी प्लांट को हम बार बार प्रोपेगेट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आए उसमें भी वही क्वालिटीज हो। अगर प्लांट जो है वो प्लांट सिंपली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जरूर आती है। लेकिन जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वेरिएशन नहीं आती है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो वो प्लांट है, जो अच्छी क्वालिटी वाला प्लांट है, हम चाहेंगे हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी वही प्लांट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी विल नीड टू हम ये चाहेंगे कि वो जो प्लांट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। तो अगर हम किसी प्लांट का ओरिजिनल जो है आपके पास, हम ओरिजिनल प्लांट को रिटेन करना चाहते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे हमने पहले बात भी की इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज if we want to produce disease free plants, if we want to produce disease free or pest resistant plant, then we will use vegetative propagation or simply I can say micro propagation. तो फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास मान लो जो साइंटिस्ट हैं, लैब्स होती हैं हमारे पास, उन्होंने कोई ऐसा प्लांट डिजाइन किया, कोई जिसमें कि बीमारियां नहीं लगती हैं, वो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। उन्होंने टिश्यू कल्चर मेथड से लैब में ही वो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किया है। तो अब जो है हम चाहते हैं कि वो डिजीज फ्री प्लांट उसी तरह से प्रोपेगेट करता जाए, अगली जनरेशन में भी वो प्लांट कैसा हो, डिजीज फ्री हो। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि वो जो करेक्टर है डिजीज फ्री होने का वो अगली जनरेशन में चला ना जाए। तो this technique is also used for producing disease free or pest resistant plants. Now furthermore use of vegetative propagation, for example if we want to see that how plants respond to various physico-chemical treatment of plants. मान लीजिए हमें ये देखना है, फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब है अगर हमें प्लांट्स पर किसी एक्सरेज का इम्पैक्ट देखना है, किसी और आपके पास फॉर एग्जांपल गामा रेज का इम्पैक्ट देखना है, या फिर हमें देखना है कि प्लांट जो है किसी केमिकल फॉर एग्जांपल आर्सेनिक या फिर मरकरी के कोई कंपाउंड्स हैं, तो हमें देखना है कि इन चीजों का प्लांट पर क्या असर पड़ता है। तो हम जो है नेचर में जाकर के पूरे बड़े प्लांट्स को इसके लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इनका इम्पैक्ट उन बड़े प्लांट्स पर स्टडी करना भी मुश्किल रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, जब हमें देखना है कि प्लांट्स पर किसी पर्टिकुलर रेज का या पर्टिकुलर केमिकल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक।
आपको पता है उसमें हम छोटा सा टिश्यू लेते हैं, बहुत सारे सेल्स हमारे पास एक छोटे से टिश्यू से बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस टेक्निक को यूज करेंगे टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट ऑन द प्लांट्स, क्योंकि उसमें हम स्मॉल स्केल पर उन प्लांट्स पे देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेडिएशन का किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थैंक्स।